Okay, student. In the last lecture, we have done the numerical based on the Nernst equation of cell and Nernst equation for electrode when they are not in the standard condition. Okay, so today we are starting with the new heading, and the new heading is thermodynamics of galvanic cell. The next heading is thermodynamic of next heading is what? Thermodynamic of galvanic cell, and in that two concepts we are seeing. मतलब how the reaction in the galvanic cell depends upon thermodynamics. So first heading is Gibbs energy of cell reaction and cell potential. Means here हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है. कौन सा फॉर्मूला तैयार करना है? जो फॉर्मूला गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताएगा. The formula which we have to derive, which will show relation between the Gibbs energy and cell potential of cell reaction. What is cell reaction? You know, we write the reaction taking place at anode. Then we write down the reaction taking place at cathode. And we add both the reactions together, and addition of the both the reaction together are called as what? Cell reaction. और उस reaction का Gibbs energy, उस reaction के लिए जो होगा cell potential, उनके बीच में relation बताना है. Correct? Now first one, in that the first point, अगर हमारा सेल, हमारा बैटरी अगर चल रहा है, तो अगर हमारा सेल, हमारा बैटरी अगर चल रहा है, मतलब सेल क्या परफॉर्म करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा. तो वर्क परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय अ सेल इज इक्वल टू, मतलब अगर हम लोग कोई भी बैटरी या कोई भी सेल अगर यूज कर रहे हैं, तो अगर वो यूज कर रहे हैं मतलब सेल हमारा चल रहा है, तो सेल जो चल रहा है उसका वर्क करेगा. तो कितना वर्क करेगा? द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, amount of charge passed into cell potential. Amount of charge passed into cell potential. मतलब हमारा अभी cell potential मालूम है हमें, E cell, E0 cell, and how much amount of charge you are passing. How much amount of charge you are passing. Like we know that here, for 1 mole of electron, मतलब अगर हमने 1 mole of electron अगर पास किया रहेगा 1 mole of electron के लिए, how much charge we have to pass? 1 Faraday, and 1 Faraday is equivalent to how much? 96500 coulomb. मतलब अगर during the reaction हमने 1 mole of electron transfer कर दिया, तो 1 mole of electron transfer करने के लिए how much electricity we require? 1 Faraday, and 1 Faraday is equivalent to 96,500 coulomb. Correct? तो similarly for अगर हमारे पास n moles of electrons है, अगर हमारे पास सी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर? 1 फैराडे. तो अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर? n फैराडे. हाउ मच रिक्वायर? n फैराडे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन, सॉरी राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन. इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास. हाउ मच? एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए n फैराडे. तो चार्ज कितना आएगा? nf into cell potential, and the cell potential is what? E cell. Cell potential is what? E cell. तो ये हमारा equation number 1. Okay, this is equation number 1. So electrical work done in the cell, मतलब अगर हमारा कोई भी बैटरी या कोई भी सेल अगर हम लोग यूज करें, तो सेल के अंदर सेल क्या परफॉर्म करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा. and work done by the cell is given by which formula? NFE cell. NFE cell. Similarly,
according to Gibbs, electrical work done in galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy, that is minus delta G. See, अगर हमारा सेल चल रहा है, अगर हमारा सेल वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो सेल अगर वर्क कर रहा है उसका मतलब क्या होगा, द गिब्स एनर्जी फॉर दैट सेल हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज वी नो कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर अपने आप हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर चल रही है, कोई भी रिएक्शन अगर ऑकर हो रही है, मतलब सम रिएक्शन ऑकरिंग, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसे होना चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज वी नो दैट इफ द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव देन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ पे हमारा सेल, हमारा बैटरी वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हमारा बैटरी वर्क परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा जी. मतलब अगर हमारा बैटरी वर्क कर रहा है उसका मतलब उस वर्क के लिए हमारा डेल्टा जी का वैल्यू कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि द मीनिंग ऑफ द डेल्टा जी निगेटिव मतलब व्हाट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. मतलब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. ओके, सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू एन एफ ई सेल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी. Equation 1 or equation 2 left hand side is same, and therefore from equation 1 and equation 2 दोनों को लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मैं राइट हैंड साइड कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल. रीअरेंज करूंगा इसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. ये हमारा इक्वेशन मिला. द गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी का मतलब क्या होगा, गिब्स एनर्जी, एंड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एन एफ ई सेल. सेम फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, माइनस एन एफ ई जीरो सेल. क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मिलेगा, या अगर हम लोग सेल पोटेंशियल में नर्स्ट इक्वेशन वाला अगर वैल्यू यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली गिब्स एनर्जी मिलेगा. तो दोनों के लिए है, अगर ई सेल वैल्यू यूज करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी. और अगर आपने ई जीरो सेल यूज कर दिया, ई जीरो सेल अगर यूज कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा जी जीरो मिलेगा. मतलब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी जीरो. डेल्टा जी इज कॉल्ड एज Gibbs energy and delta G0 is called as a standard Gibbs energy. कल ध्यान में क्या होना चाहिए, जब आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करना है तो ई सेल यूज करना है, और आपको डेल्टा जी जीरो यूज करना, अगर फाइंड आउट करना क्या है, ई जीरो सेल. इसका मतलब हमारा हेडिंग क्या था कि सेल रिएक्शन का अगर आपके पास सेल पोटेंशियल है, सेल रिएक्शन के लिए अगर आपके पास गिब्स एनर्जी है, तो गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिएक्शंस होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. ये हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, या डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल. ओके, तो फॉर्मूला हुआ. तो व्हाट इज इट, कैसे स्टार्ट किया था, देखो हम लोगों ने, अगर कोई भी सेल अगर चल रहा है तो सेल क्या परफॉर्म करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा. एंड वर्क डन बाय द सेल इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास इनटू सेल पोटेंशियल. फॉर 1 mole of electron the charge pass is 1 Faraday. So for n mole of electron the charge pass will be how much, n Faraday. तो चार्ज हमारा आएगा NF और सेल पोटेंशियल. अगर हमारा सेल चल रहा है मतलब सेल वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो सेल वर्क परफॉर्म कर रहा है मतलब डेल्टा जी वैल्यू कैसे आएगा, निगेटिव.
तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल रहेगा तो राइट हैंड साइड कंपेयर करके हमें इक्वेशन मिला। तो दीज आर द इक्वेशन which we have to use for solving the numerical. Okay, तो हमारे एक फॉर्मूला हुआ ना, गो इसके आगे का पार्ट है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हियर इज, देखो डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी, तो वी नो द डेल्टा जी जीरो दैट इज गिब्स एनर्जी is extensive property. Gibbs energy is extensive property. हमने thermodynamics में देखा था, what is extensive property? The property whose value depends on amount of matter. The property whose value depends on amount of matter are called as a extensive property. तो हमारा जो Gibbs energy है, ये कौन सा property है? Extensive property है, because it depends on amount of reactant, or it depends upon amount of substances present in the reaction. Amount of substance present during the reaction. So that delta G is zero is a extensive property. Okay. Similarly, E0 cell, then ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हमें कोई रिएक्शंस को, सेल रिएक्शंस को अगर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, मतलब हमारा जो क्वांटिटी है, मतलब इफ आई जस्ट राइट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, इफ द सेल रिएक्शन इज multiplied by some number, if cell reaction is multiplied by some number, small number, then the amount of substance, or I'll just write down here, if the cell reaction is multiplied by, if the cell reaction is multiplied by 2, मतलब अगर हमारे cell reaction को 2 से multiply करेंगे, if the cell reaction is multiplied by 2, the amount of substance जो भी oxidize होगा या जो भी reduce होगा will be double, and the moles of electron, the moles of electron transfer also doubles. देखो, अगर हमारा कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारा सेल रिएक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल ZnCU2+ gives you Zn2+ and copper, ये हमारा सेल रिएक्शन। ओके, अगर, और यहाँ पे मालूम है इस सेल रिएक्शन में कि नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2, यू नो, Zn loses 2 इलेक्ट्रॉन and copper gains 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आर 2। लेकिन अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 2 Zn, 2 copper, 2 Zn2+ and 2 copper, so number of electron involved becomes what, 4। मतलब अगर मैंने इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो भी डबल हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो रहा है। करेक्ट, मतलब सब्सटेंस भी बढ़ रहा है और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखो हमारा गिब्स इक्वेशन क्या था कि अभी डेल्टा G0 is minus NfE0 cell, delta G0 is minus NfE0 cell, so therefore E0 cell is equal to delta G0 upon NF, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। देखो
E0 cell is equal to delta G0 upon NF. तो अगर ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डबल करोगे तो ये भी डबल हो रहा है, करेक्ट? तो रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो अगर देखो ये डेल्टा G0 अपॉन NF है, मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 2 होगा, तो 2 विल गेट कैंसल. यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से भी 3, so 3 विल गेट कैंसल. इसका मतलब द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट. द वैल्यू. और यू कैन, हमारा थर्मोडायनामिक्स का कांसेप्ट है, अगर ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और अगर ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, then we know that the ratio of the two extensive property is the intensive property, and therefore E0 cell is intensive. E0 cell is a intensive property. मतलब अभी मालूम है ये हमारा जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा डैनियल सेल का रिएक्शन है, डैनियल सेल का, और इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट. ये हमारा रिएक्शन डैनियल सेल में होता है, उसका वोल्टेज 1.1 है. तो अगर मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, बट the standard cell potential will be how much? 1.1. Cell potential remains the same. इसका मतलब क्या हुआ? Cell potential does not depends upon the amount of substances. Cell potential does not depends upon the number of electrons involved in the process. It remains the same, and therefore cell potential is the intensive property. That is, it does not depends. It does not depends upon amount of substance. It does not depends on amount of substance. यहाँ पे इतना ही प्रूव करना था, because many time in the exam they ask the question E0 cell is a which property. तो मैं मालूम होना चाहिए standard cell potential is a intensive property. Which property it is? Intensive property. क्यों? क्योंकि ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ये बड़ा हो गया तो ये बढ़ेगा, ये बड़ा होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन दोनों का रेशियो रिमेन्स द सेम. डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड रेशियो ऑफ द टू इज डेंसिटी, बट डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये हमारा थर्मोडायनामिक कंसेप्ट है, रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव. यहाँ पे मैं और भी और नोट लिख के रखता हूँ यहाँ पे, अगर याद रहेगा तो. ये तो आप डायरेक्टली पता चली गया, लेकिन रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज intensive property. Is a intensive property. Ratio of the two extensive property is a intensive. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि E0 सेल कौन सा प्रॉपर्टी है. तो मालूम होना चाहिए कि E0 सेल हमारा कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा. ओके, देन आई गो. तो ये हमारा एक इक्वेशंस हो गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हो गया. आई गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. Now I'm going for the next heading here. Standard. Next formula. Standard cell potential and equilibrium constant. तो ना अभी हमें रिएक्शन किसमें बताना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनके बीच का रिएक्शन रिलेशन दिखाना, मतलब इनके बीच में फॉर्मूला फॉर्म करना. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनके बीच में रिलेशन क्या है? करेक्ट. तो नाउ हियर आई राइट डाउन द फर्स्ट वन. अभी जस्ट वी हैव डन वन इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन किया हम लोगों ने? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. ये इक्वेशन किया था हमने डिराइव. स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू N. व्हाट इज मीनिंग ऑफ N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मोल, फैराडे.
E0 cell, E0 cell, correct? Then now one formula we have seen in thermodynamics, delta G0 is equal to minus RT ln K, equation number 2. This equation we have done in which chapter? Thermodynamics. ये हमारा ये जो equations है हमारा from थर्मोडायनामिक्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन। तो देखो थर्मोडायनामिक्स में क्या था, रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट? अभी हमें क्या दिखाना है, रिलेशन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इक्वेशन है जो अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने किया। ओके, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशंस है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, करेक्ट? डेल्टा G0 डेल्टा G0, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम रहेगा तो राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हो। सो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, देखो माइनस NF E0 सेल इक्वल टू, इक्वेशन 2 में क्या आ रहा है, माइनस RT ln K माइनस NF E0 सेल इज इक्वल टू माइनस RT ln K, करेक्ट? अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा E0 सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF, E0 सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF को यहाँ पे इधर लिखे NF ln K, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल वी कन्वर्ट ln इनटू log। तो log में अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा, यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। तो here we write 2.303 RT and then he'll write what, log of K to the base 10 divided by NF. See here, मैंने ln को log में कन्वर्ट कर दिया, and we know the rule, when we convert ln to log 10 we have to multiply which number, 2.303, and then here we know that ये हमारा इसका वैल्यू मालूम है 2.303, R is a gas constant, T is a temperature 295 Kelvin, F is a Faraday, सारा वैल्यू मुझे मालूम है, then we know that this multiplying कितना आएगा, 0.0592 divided by what, n, because we know इसका वैल्यू हमें मालूम है, इस नंबर का वैल्यू मालूम है 2.303 RT upon F, 2.303 RT upon F we have done in the Nernst equation. This value is what, 0.0592 we have done. Okay, so 2.303 RT, देखो 2.303 RT upon F, n log K to the base 10. So this is a formula gives relation between what, standard cell potential and equilibrium constant. This formula gives relation between what, standard cell potential and equilibrium constant. तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हुआ, करेक्ट? तो आज हमने दो रिलेशन दिए, एक गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, और दूसरा इक्वेशन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड सेल। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। So now we'll start the numerical of this type, correct? We'll start with the numerical of this type. So I'll just go for the numerical, 1 minute. Okay, I'll just take some example from the textbook, which is solved one, and then I'll go to the exercise numerical. Okay. See here, page 108, problem 5.12. उन्हें क्या बोला है सबसे पहले यहाँ पे, कैलकुलेट standard Gibbs energy, okay, Gibbs energy and equilibrium constant, मतलब K find out करो।
ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। For at 25 degrees Celsius for the reaction, which reaction they have given? CD in the solid state plus SN2 plus in the aqueous state gives you CD2 plus in the aqueous state plus SN in the solid state, correct? CD SN2 plus, देखो कैडमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और SN2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है. चार्ज ऑफ द कैडमियम इज इंक्रीजिंग and charge of the SN2 plus is decreasing. तो ये अगर charge of the element goes on increasing, it is called as oxidation. And if the charge of the element is decreasing, it is called as a reduction. Okay. ये अभी यहाँ पे उन्होंने और क्या क्या वैल्यूज दिया है? They have given the E0 of cadmium minus 0.403 volt, and they have given the value of E0 of SN. E0 of SN is minus 0.136 volt. ये दो वैल्यूज दिए, करेक्ट? और उन्होंने क्या बोला, और क्या बोला है? राइट सेल फॉर्मूला भी लिख दो. तो सबसे पहले कैसे मालूम है? हम यहाँ पे सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हु विल एक्ट एज अ एनोड एंड हु विल एक्ट एज अ कैथोड. तो हम इससे भी डिसाइड कर सकते हैं और रिएक्शन से भी डिसाइड करते, लेकिन जब अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो पहले रिएक्शन से डिसाइड करो. देखो रिपीट, यहाँ पे एनोड कौन रहेगा, यहाँ पे कैथोड कौन रहेगा, कैसे डिसाइड करना है? बाय यूजिंग सेल रिएक्शन. या इसे भी डिसाइड कर सकते हो, जिसका E0 वैल्यू हायर रहेगा, जिसका E0 वैल्यू हायर रहेगा वो कौन रहेगा? कैथोड. और जिसका E0 लोअर रहेगा वो कौन रहेगा? एनोड. करेक्ट? तो ऐसे भी डिसाइड कर सकते, लेकिन जब आपको रिएक्शन दिया रहेगा तो रिएक्शन से डिसाइड करना है. हाँ, अगर मुझे रिएक्शन नहीं दिया है, अगर मुझे रिएक्शन नहीं दिया है, प्लीज म्यूट करो. अगर मुझे रिएक्शन नहीं दिया है तो मुझे इनसे डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे रिएक्शन दिया है तो मुझे रिएक्शन से डिसाइड करना है. तो ध्यान में रखना, अगर आपको रिएक्शन एंड E0 वैल्यूज के दिए तो यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम व्हाट? रिएक्शन. यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम रिएक्शन, करेक्ट? So here I'll just write down first. So who will undergo oxidation? Cadmium. So I'll write down here at anode. At anode. Which reaction occurs at anode? Oxidation. किसका होगा? कैडमियम का. तो चार्ज ऑफ द कैडमियम इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे मिलेगा CD gives you CD2 plus 2. अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीडेशन. एट कैथोड which reaction? Reduction. Charge of the element goes on decreasing. SN2 plus का SN हो रहा है, SN2 plus का क्या हो रहा है? SN हो रहा है, और रिडक्शन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो ये हमारा रिडक्शन. सो दिस इज आवर ऑक्सीडेशन, दिस इज आवर रिडक्शन. तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड. तो अगर मैं सेल फॉर्मूला लिखूंगा, सबसे मैं पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे सेल रिएक्शन लिख देते हैं. सेल रिएक्शन देखो, उन्होंने सेल रिएक्शन दिया था. सेल रिएक्शन से हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड. एनोड के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, कैथोड के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखा, और फिर दोनों को ऐड करना. दोनों को ऐड करते समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी द सेम. मतलब व्हाटएवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एट एनोड, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी गेन एट द कैथोड. करेक्ट? तो अब ये करेक्ट है. तो सेल रिएक्शन क्या आएगा? देखो हमारा जो उन्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, बट स्टिल आई राइट हियर कैडमियम प्लस SN2 प्लस गिव्स यू कैडमियम 2 प्लस एंड SN. तो यहाँ से हमें क्या पता चला? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर 2. ये पता चला. अभी सबसे हम सेल फॉर्मूला लिखते हैं. ये एनोड है. एनोड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में. तो एनोड कैसे लिखोगे? CD in the solid state in contact with CD2 plus और आयंस दिया है और इस सॉल्ट ब्रिज. एनोड कहाँ पे लिखना है? सेल फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में. और कैसे लिखोगे? मेटल के अंदर वाले बाजू में, मतलब इनर साइड में क्या लिखना है? आयंस. कैथोड कौन एक्ट करेगा? SN. तो SN
in the solid state in contact with SN2 plus ion in the weak state aqueous. तो ये हमारा बना cell formula. Okay, this is called as a cell formula in which cadmium is acting as an anode and tin SN is acting as a cathode. Okay, now we will calculate the Gibbs energy. But Gibbs energy के पहले हमें find out करना पड़ेगा E0 cell. E0 cell. What is formula for E0 cell? E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. Cathode कौन है? Sn. Anode कौन है? Cadmium. Cadmium equal to Sn का वैल्यू दिया हुआ है. यहाँ पे देखो Sn का वैल्यू है minus 0.136 minus 0.136 minus कैडमियम का वैल्यू भी दिया हुआ है माइनस 0.403 तो माइनस 0.403 so here we'll have minus 0.136 plus 0.403 अगर ऐड करोगे तो how much difference will get here? That is 0.267 volt. I'm just writing from the book. Solve sum है तो E0 cell मिला. E0 cell is 0.267 volt. Correct? 0.267 volt. ये हमारा potential E0 cell. Okay. E0 cell मिला. Now I can go for the which heading? Delta G0. Gibbs standard Gibbs energy. Standard Gibbs energy. Okay. So what is the formula for standard Gibbs energy? Standard Gibbs energy is equal to minus NF E0 cell. Standard Gibbs energy equal to minus NF E0 cell. Minus N मतलब how many electrons are involved? और देखो यहाँ पे पता चलेगा E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव है. E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा सेल जो ये जो रिएक्शंस दिया हुआ है ये रिएक्शन ऑकर होगा. इट विल ऑकर. तो यहाँ पे अगर हमारा सेल रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें जो रिएक्शन दिया है सेल रिएक्शन जो दिया हुआ है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. मतलब अगर कोई भी इक्वेशन के लिए अगर आपका E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो गिवन सेल रिएक्शन इज spontaneous in nature. Given reaction is what? Spontaneous in nature. Okay. अब लोग और प्रूव करेंगे. Delta G0 N. How many electrons are involved? 2. Faraday. 1 Faraday is equal to how much? 96500 coulomb. Or E0 cell. What is the value of the E0 cell? 0.267. Okay, 0. मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ ताकि उनका कुछ मिस्टेक ना हो जाए. 0.403 minus 0.136. Yes, correct. 0.267. तो यहाँ पे आएगा. नाउ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लीज मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. अगर लॉग से करना है तो लॉग से भी कर सकते हैं बट अगेन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो थोड़ा कर दो इजी जाने दो. या अगर लॉग से करना है तो प्लीज है मुझे लॉग बोल दो. log of 2 will be 0.3010. log of 96500 तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. 5 minus 1 4. यहाँ पे आएगा 4 पॉइंट और ये 0.267 log of 0.267 तो ये आएगा 12. ओके. तो यहाँ पे डिजिट कितने थे? 1 2 3 4 5. 5 minus 1 4. तो प्लीज somebody can tell me the log of 96 under 5. 96 under 5 का log बोलो. 9845. 9845. And somebody can tell me the log of 26 under 7. 4265. 4265. 4265. Okay. Now a multiplies it. All number to be added together. Okay. Okay. All numbers to be added together. So if you add all the number together, 5 plus 5, 10. 6 plus 4, 10, 11 and 12. 8 plus 2, 10 plus 1, 11.
9 plus 5, 14. 14 plus 3, 15, 16, 17. And then minus 1 plus 1 cancel the 4 point. And then now tell me the antilog of 71 under 2. 71 under 2. 5152. 5152. यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 decimal point after first digit into 10 raised to 4. Decimal point after first digit and into 10 raised to 4. और ये आंसर मिलेगा minus 5.152 into 10 raised to 4. और ये जो आपको आंसर मिलेगा, उसका यूनिट आएगा जूल. यूनिट क्या आएगा? जूल आएगा. ओके, बिकॉज ये नंबर ऑफ मोल थे, मोल, ये फैराडे 96500 कूलम और ये था वोल्ट. तो कूलम वोल्ट कूलम का मतलब होता है जूल. ये वैल्यू है कूलम में, ये वैल्यू है वोल्ट में, एंड कूलम वोल्ट इज कॉल्ड एज अ जूल. लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, तो हमें जो गिब्स एनर्जी मिलेगा स्टार्टिंग में वो किसमें रहेगा? जूल. लेकिन विल कन्वर्ट करना है तो करो, नहीं तो करोगे तो चलेगा. लेकिन किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो माइनस 5.152 इनटू, अगर मुझे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय पावर 10 रेज टू -3. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, प्लस 4. अगर मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -3. करेक्ट. तो यहाँ पे आएगा प्लस -3 प्लस 3 कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 10. तो माइनस 5.152 इंटू 10, तो यहाँ पे आएगा -51.52 किलो जूल. -51.52 किलो जूल इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. ओके, किलो जूल. एक्चुअली वी गॉट द फर्स्ट आंसर इन विच यूनिट? जूल. अगर आपको जूल में रखना है जूल में रखो, और अगर किलो जूल, लेकिन ये मालूम है कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर जूल में मिलेगा. एंड जूल का किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 10 रेज टू -. तो हमारा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो गया. यस, नाउ विल गो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द थर्ड थिंग. ये हमारा सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. E0 सेल is equal to 0.0592 upon n log of k to the base 10. E0 cell equal to 0.0592 upon n log of k to the base 10. अभी मुझे यहाँ पे E0 सेल मालूम है. E0 सेल कितना मिला था हमें? 0.267. हाँ, दूसरा यहाँ पे भी और एक देखो पॉइंट, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है, और डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है मतलब हम लोग लिख सकते हैं सेल रिएक्शन इज, उन्होंने बोला नहीं लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन के लिए अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसे रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा. मतलब रिएक्शन पॉसिबल है. ओके, देन 0.267 is equal to 0.0592 n. how many electrons were involved? 2. log of k to the base 10. ये हमें फाइंड आउट करना. तो अभी देखो यहाँ पे 0.267 इक्वल टू, मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? 0.0296. 0.0296 log of k to the base 10. log of k to the base 10, and then 0.267 divided by 0.0296 equal to log of k to the base 10. तो अभी हमें पहले पार्ट्स, इसको पहले सिंप्लीफाई करो. इसे पहले सिंप्लीफाई करो. तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो, आई जस्ट फाइंड आउट हियर log of 0.267, log of 0.267, तो क्या लिखोगे? बार 1. और 267 का लॉग हम लोग यहाँ पे देखा था, कितना लॉग है? 4265. 4265. ओके, अपॉन माइनस लॉग ऑफ 0.0296, तो क्या लिखोगे? बार 2. 0.0296 का क्या लिखोगे? बार 2. एंड कैन समवन टेल मी द लॉग ऑफ 29 under 6?
29 under 6, 4713, 4713, ओके। और अपॉन है, यहाँ पे अपॉन मतलब क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्शन तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन देखो 5 - 3 is 2, 6 - 1 is 5, 12 - 7 is 5, and then 4, 14 - 5 is 9, and then 1। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस टू बिकम +2, ये -1 और ये भी -1, तो 0 पॉइंट आएगा, ये 0। देखो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में, यहाँ से देखो 4 से ये नंबर माइनस नहीं हो रहा, मतलब ये 3 था। मेरा सब्ट्रैक्शन का मेथड अलग है, तुम्हारा मेथड अलग है, लेकिन यहाँ पे आंसर सेम आ जाएगा 0.9552। तो somebody can tell me the antilog of 9552। So 9020. 9020, ओके 9020, ये 9.020 आ गया, करेक्ट। सो हियर आई विल राइट, यस ओके, थैंक यू। 9.020 इक्वल टू log of k to the base 10, ओके। लेकिन अभी मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन k के पहले क्या है, log है। मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, k के पहले log है, तो ये देखो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तुम बोलोगे यहाँ पे log एंटीलॉग क्यों देखा, बिकॉज ये सिंपल डिवीजन नहीं था। तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट बाय यूजिंग अ लॉग, हमें लॉग से ये पार्ट सॉल्व करना पड़ा, करेक्ट। फिर अभी ये आ गया, नाउ आई कैन से टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एंटीलॉग ले लो। तो एंटीलॉग ऑफ 9.020 इक्वल टू, और जब मैं यहाँ पे एंटीलॉग लिखूंगा तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया था, log ऑफ 0.267 माइनस log ऑफ 0.0296, और फिर यहाँ पे जो भी आंसर मिलता उसका मैंने एंटीलॉग देखा था, ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हुआ। अभी मैं इस नंबर का वापस एंटीलॉग क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉग कैंसिल करना है राइट साइड का, और राइट साइड का लॉग कैंसिल करने के लिए आई हैव टू टेक द एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड। तो इसका एंटीलॉग लूंगा और यहाँ पे एंटीलॉग लॉग कैंसिल होगा, तो कौन से नंबर का एंटीलॉग देखोगे एंटीलॉग कौन सा, एंटीलॉग हमें कहाँ पे देखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, 02। डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, 02। तो यू हैव टू सी एंटीलॉग ऑफ 02। तो बोलो 02 का एंटीलॉग कितना आ रहा है, 1047. यस 1047, करेक्ट। तो 1.047 into 9 is a characteristic, so into 10 raised to power 9 equal to k. So therefore I'll write k equal to 1.047 into 10 power 9 is the value of equilibrium constant. This is the value of equilibrium constant. So in this problem we have calculated three things. सबसे पहले कैलकुलेट किया E0 सेल, बाद में कैलकुलेट किया डेल्टा G0, और बाद में कैलकुलेट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, इस न्यूमेरिकल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इस न्यूमेरिकल में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। Okay, now I'm just doing one. I'm going to exercise page 117, question 1 in that 7। देखो एक्सरसाइज पेज 117 क्वेश्चन 1 इन दैट 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उन्होंने सेल रिएक्शन दिया हुआ है, Na in the solid state plus copper 2 plus having concentration 1 molar gives you
Na2 plus having concentration 1 molar plus copper in the solid state. देखो यहाँ पे concentration 1 molar है, यहाँ पे भी concentration 1 molar है, मतलब हमारा cell standard condition में है and they have given the value of E0 cell. The E0 cell is 0.57 volt. E0 cell दिया हुआ है and they have asked us calculate the value of delta G0. Delta G0 means what? Standard Gibbs energy. और standard Gibbs energy हमें पहले किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा. अगर आपको आंसर जूल में रखना है तो जूल में रखो और you may convert it into kilo. But by calculation आंसर किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा. Okay. तो अगर मुझे Gibbs energy find out करना है तो what is the formula for Gibbs energy? Delta G0 is equal to minus NF. तो हमें इलेक्ट्रॉन मालूम है, इलेक्ट्रॉन. तो एक्चुअली आपको यहाँ पे इक्वेशन देख के भी पता चल सकता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इक्वेशन देख के पता चलेगा. लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर आपको हर एक इक्वेशन को देखना पड़ेगा. यस करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आई राइट डाउन एट एनोड. एट एनोड व्हिच रिएक्शन विल हैव ऑक्सीडेशन. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Na का. Na का चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो हियर Na gives you Na2 plus or 2 electron. Okay. At cathode क्या हो रहा है? रिडक्शन. मतलब चार्ज ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है कॉपर का. Cu2 प्लस से क्या बन रहा है? Cu बन रहा है. तो Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu. हो गया. ऐड करने की जरूरत नहीं, ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा. हमें मालूम था क्या करना था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एट एनोड and 2 electrons are gained at anode. 2 electrons are given at anode and 2 electrons are gained at cathode. So number of electron involved in the process are 2. Number of electron involved in the process are 2. Okay, and then I can use here delta G0 is equal to minus NF E0 cell. Delta G0 is equal to minus NF E0 cell equal to minus N. How many electrons are involved? 2. 1 Faraday means how many coulomb? 96500 coulomb. A coulomb में, correct? And E0 cell is 0.57. E0 cell 0.57. देखो यहाँ पे E0 cell पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसका भी आंसर नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बोलो मुझे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बोल दो. Okay, how much you are getting? 110010 joule. 110010 joule is the answer in the joule. लेकिन अगर मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 110010 into 10⁻³ किलो जूल. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले मैं से पावर फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ इस नंबर को, तो यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो इधर लेके जाएगा तो 10, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3. तो यहाँ पे आएगा -110.010 इंटू 10 पावर +3 इंटू 10 पावर -3 +3 -3 कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर कितना मिलेगा? -110.010 किलो. एक्चुअली हम लोग जब लॉग से करेंगे तो अपने डायरेक्टली आंसर मतलब पावर फॉर्म में आता है. तो ये हमारा आंसर है. फर्स्ट ऑलवेज ध्यान में रखना है कि सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में मिलेगा. आप आंसर जूल में रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और यहाँ पे आंसर किलो जूल में दिया था तो उसे फिर किलो जूल में करना पड़ेगा. Answer by solving the numerical you will get in which unit? Joule. And you have to convert the joule into kilojoule by multiplying which number? 10⁻⁻3. Correct? 10⁻⁻3. Okay. यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? इस न्यूमेरिकल में कुछ डाउट है क्या?
ओके अभी और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे इस टाइप का, बट आई थिंक द कैलकुलेशन विल टेक लॉन्ग टाइम। तो आपका बायो का सीएस का लेक्चर है अभी। यस प्लीज रिप्लाई। Okay, yes, okay. So that one more numerical is there, but I'll do it in the next time because it will take a long time. तो खत्म नहीं होगा। तो ओके कुछ आज के अच्छा नेक्स्ट थर्सडे एक कमिंग थर्सडे के लिए आप कौन से इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखोगे? दैट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल फॉर्मूला एंड द नर्स्ट इक्वेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रखोगे। और उसके अगले वाले थर्सडे के लिए कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? Gibbs energy and equilibrium constant. Gibbs energy and equilibrium constant. Okay. So I'll stop it over here. Next part we'll do it in the next lecture. Okay, thank you. Thank you, sir. doubt है तो बोल सकते हो।